So let's begin with a discussion of AIMT1 quant section. Starting with the selection of questions, we'll just go through the questions for once and we'll just decide upon whether questions to be selected and rejected or not. Starting with question number 45 on the screen. I guess a question from quadratic equation. We could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 46 seems to be something from number system. So you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 47, I guess something from area or mensuration. So you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 8, something from inequalities, लेकिन maximum possible value पूछा है. ठीक है, तो you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 9, again inequalities, but stack के अपन questions कर चुके हैं. Still skipping it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 10th, clocks. तो अगर आप लोगों को clock आता है, ideally you should have attempted it. As of now, part 1 में डलवा रहा हूँ, considering कि आप लोगों का clock हो चुका होगा. Question number 11, time speed distance 100%. Sorry, question number 51, time speed distance 100%. You should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 52, something from sort of like I guess equations. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 23 seems to be like time and work. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 54, trigonometry, could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 55, something from progressions. So although we are done with it, but seems like you could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 56, maximum amount of this. You could have skipped it for now. Probability we are done with, but yes, some of the students are not done with it yet. And secondly, this is something as of now we are skipping it. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 57, I guess this is SICI, simple interest compound interest. You should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 58, averages से related लग रहा है. You should have ideally attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 59, something I guess from percentages. You should have attempted it. Profit loss से related कुछ लग रहा है तो part 1 में डाल दीजिए. Question number 60, again something from number system. So you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 61, allegations mixtures लग रहा है. So you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 62, I guess search indices से related कुछ लग रहा है. So you could have skipped it for now. So part 2 में डाल दीजिए. We are done with it. Question number 63, geometry है. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 64, geometry है. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 65, something from equation. So you could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. And question number 66, again something from number system. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Starting with 45. सबसे पहले doable question कौन सा है? 50. 50. Anyone having a doubt? No sir. Clocks हो चुका है आप लोगों का वैसे? हाँ सर हो गया. हाँ सर हो गया. ठीक है, तो I don't feel like it's a doubt. In case if it is, then please ask Abhishek sir. But basic question है, clocks का बहुत ज्यादा technical है नहीं, तो you could have attempted it. फिर भी अगर doubt है तो आप अभिषेक sir से पूछ सकते हैं. No issues with that. Going ahead, next. 51. बताना है किसी को? Yes sir. No. Let's check it out. किसी का doubt है? Two sisters, Raima and Riya, start jogging from the same point on a circular track in opposite direction. They first meet after 35 minutes. Raima then increases her speed by 300 meter per minute and Riya by 360 meter per minute. They again meet 2 minutes later, during which Riya covers 100 meters more than Raima. ठीक है. What was Riya's initial speed in meter per minute? देखो यहाँ पे जो speed की बात हो रही है, that is something they are talking in terms of meter per minute. ठीक है. Any idea? किसी ने किया हो तो? या फिर मैं बता दूं सीधे? Yes sir. Yes ma'am. किया है आपने? Yes sir. बताइए कैसे किया? सर सर्कुलर ट्रैक का पहले तो इनकी स्पीड दे रखी थी ना? नहीं दे रखी है. अच्छा नहीं वो नहीं, हाँ मैंने x और y मान ली थी. बराबर 100%.
फिर तो 35 को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करा था सर। बट मैम स्पीड आगे मीटर पर मिनट में पूछे तो आई डोंट फील लाइक देयर इज एनी नीड फॉर दैट। हाँ सर, पर मैंने कर दिया था बाद में। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक बार देखते हैं। देखिए, एक सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ से एक सिस्टर स्टार्ट होती है एट स्पीड ऑफ एक्स, दूसरी स्टार्ट होती है एट स्पीड ऑफ वाई, दे आर मीटिंग आफ्टर 35 मिनट्स। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रैक मेरे हिसाब से है 35 ऑफ एक्स प्लस वाई। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Raima increases her speed by 300. So for Raima, new speed is x plus 300 meter per minute. For Ria, new speed is x plus 360 meter per minute. Y plus 360. Sorry, y. यस सर। है ना? They are meeting after 2 minutes. They meet again 2 minutes later. What does it mean? It simply means कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग तक कितना चलना पड़ेगा इनको? 2 मिनट्स सेम लेंथ में। 2 minutes नहीं, 2 डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। Twice of plus 3. length. सॉरी, Twice of length. 2x plus twice of x plus y plus 660 सर। अरे यार, यहाँ पे मीटिंग हो गई, पहली मीटिंग। दूसरी मीटिंग के लिए भी तो सर्कुलर ट्रैक ही कवर करना पड़ेगा। यस हाँ। सर। तो वन मोर सर्कुलर ट्रैक इज कवर्ड इन 2 minutes, राइट? Hmm. सो ये हो गया 2 2 into x x plus plus 300 y plus plus y plus 360. 360। हाँ, है ना? इधर से Yes, sir. ट्वाइस ऑफ x plus y उठा के इधर ले आओ, 33x plus y रह जाएगा। Hmm. और ये हो हाँ। जाएगा ट्वाइस ऑफ 660। दिस इज Hmm. 1, दिस इज 20। मतलब ये x plus y आ गया 40। Hmm. कोई दिक्कत नहीं, No, लेंथ आ गया। नहीं? मतलब लेंथ ऑफ द ट्रैक आ गया 1400। यस सर। Hmm. ठीक है। हाँ, 2 मिनट में रिया ने कितना ट्रैवल किया होगा? ट्वाइस ऑफ y प्लस 360। Hmm. रायमा ने कितना ट्रैवल किया होगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस Y 300। और ऐसा दे रखा है रिया कवर्ड 100 ट्वाइस क्यों? 2 मिनट की बात कर रहे हैं ना सर? ये इनकी 2 स्पीड है। मिनट? सॉरी, एक मिनट दोबारा बताना सर, ये ट्वाइस क्यों बोल रहा किया? हूँ, ये लाइन रीड कीजिए। दे मीट अगेन 2 minutes लेटर, ड्यूरिंग हाँ। विच रिया कवर्स 100 मीटर मोर देन रायमा। हाँ। तो इन 2 मिनट में जो रिया का डिस्टेंस है वो रायमा से 100 मीटर ज्यादा है। हाँ या ना? हाँ। ठीक है सर। 2y plus 720 minus 2x minus 600 equal to 100. 2y minus 2x equal to मेरे हिसाब से कितना? -20। -20 यस सर। तो x minus y equal to 10। हाँ या ना? यस हाँ सर। sir. x plus y equal to 40। हाँ या ना? ये रहा। यस Hmm. Subtracting, solving the two equations, I'll have x equal to 25 and y equal to 15। हाँ या ना? यस सर। यस सर। रियाज इनिशियल स्पीड पूछा है। रिया की इनिशियल 15. स्पीड क्या थी? तो 15 शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा था 15 का जो छुप गया है। यस सर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं। A basic question, ideally you could have attempted it, right? बहुत ज्यादा टेक्निकल था नहीं। Is that clear? Shall we go ahead? Yes, sir. Shall I remove the solution? Yes, sir. Hmm. Fine, thank you. Next, please. 52. 52. 52 बताना है किसी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। We'll just take it out. Gadget enthusiast Nick decided to buy some electronic accessories at a tech store. He aimed to buy twice as many Bluetooth trackers as USB cables, and at least one more USB cable than wireless chargers. Let's assume wireless chargers X लेता है, तो वो चाहता है कि वो USB cables X+1 या उससे ज्यादा कुछ ले, और Bluetooth tracker twice of X+1 से twice of X+1 ले exact। हाँ है ना? यस सर। यस सर सर। ये एटलीस्ट का क्या किया आपने? एटलीस्ट वन मोर यूएसबी केबल। मतलब ये X+1 भी हो सकता है या उससे बड़ा X+2, X+3, X+4 कुछ भी हो सकता है। तो सर ब्लूटूथ भी एग्जैक्टली थोड़ी ना होएगा, वो भी वो एटलीस्ट। एग्जैक्ट है मैम। We aim to buy twice as many Bluetooth trackers। बट सर अपना तो ब्लूटूथ ट्रैकर ही, अच्छा वो यूएस, सॉरी राइट सर। कल को ये X+2 होता है ना, तो twice of X+2 हो जाएगा।
Yeah, right. हाँ अ, ठीक है। यूएसबी केबल कॉस्ट 3 times एज मच एज वायरलेस चार्जर। ये तो नंबर हो गया, इनकी कॉस्ट की बात करते हैं। यूएसबी केबल कॉस्ट 3 times एज मच एज वायरलेस चार्जर। ये वाई रुपीस का है तो ये 3 वाई का है। हो गया। अच्छा, यूएसबी केबल कॉस्ट 3 times एज मच वायरलेस एंड वायरलेस चार्जर आर प्राइस्ड एट हाफ द कॉस्ट ऑफ ब्लूटूथ ट्रैकर। मतलब ब्लूटूथ ट्रैकर 2 वाई का है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। अच्छा, ये दे ही रखा है वायरलेस चार्जर का, तो ये सब assumption की नीड ही नहीं है। ये किसका सिंबल है? फॉन्ट का? यूरो। Euro 1. पता नहीं मैडम, मैं कौन सा यूरो के होंगे, मेरे को यूरो का पता। यूरो है तो वायरलेस चार्जर है 1 यूरो का। तो मेरे हिसाब से ब्लूटूथ ट्रैकर होगा शायद 2 यूरोस का, Hmm. और यूएसबी केबल होगा 3 यूरोस का। 3. Hmm. ईच वायरलेस नेक्स्ट टोटल बिल केम 47। ओके, सो इसने एक्स वायरलेस चार्जर खरीदे X रुपीस के। Hmm. 3 रुपीस के 3x हिसाब से plus 3. X प्लस 1. 1 ले लें क्या यार? सर 1 की जगह कोई वेरिएबल लेना चाहिए ना। Y ले लेते हैं Hmm. एंड यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ है ना? हाँ यस सर. सर। हाँ सर। एंड 2 × 2 x प्लस y। ये कोई दिक्कत वाली बात लग रही है तो बोल दो, नहीं तो आगे चलेंगे। नहीं। No sir. नो सर। दिस इज x प्लस 7 times of x प्लस y। Hmm. इक्वल टू 47। तो इटन प्राइस यार बताना एक पड़ेगा। छोटी सी बात मुझे बताओ भैया, Yes sir. थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। x नंबर है, मतलब x नेचुरल नंबर ही हो सकता है बिकॉज इट इज Hmm. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ। y भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इनमें से कुछ भी डेसिमल नहीं होगा। मुझे ये बात समझ में आई? Hmm. यस सर। ठीक है, तो इट इज एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये समझ में आई। अब यार एक बात बताओ, अगर 47 से जस्ट छोटा 7 का मल्टीपल लूं तो वो क्या आएगा? 42। 42. अगर ये वैल्यू 42 है तो x कितना हो जाएगा, ये वाला? 5. 5। 5. और अगर x 5 है, 7 1 6 y या 1. 42, तो y कितना हो गया? 1। 1. ठीक है। अब आप बोलोगे सर 35 ही क्यों लिया, 42 ही क्यों लिया? 35 भी तो ले सकते हैं, बराबर नहीं ले सकते 35 हैं। शायद y1 नहीं आएगा। अगर इसको 35 लिया तो ये कितना हो जाएगा? 12. और अगर ये 12 हो गया तो y नेगेटिव हो जाएगा? Hmm. हाँ। यस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आई गेस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। यस। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और तरीका बता दूंगा, बट ये समझ में आ गया, इसमें टाइम बचेगा। यस सर। आ गया आ यहाँ गया तक? सर. चलो हाँ. बढ़िया। अगर आ गया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लेते हैं। ये 5 ऑब्जेक्ट थे, 5 और 1 6 ऑब्जेक्ट थे, 5 1 6 का डबल 12. 12 ऑब्जेक्ट थे, 12 और 5 6 तेईस. 18 5 23। ये समझ में आ गया? यस। Yes sir. Yes, sir. जिसको ये नहीं आया वो ये तो निकाल ही लेगा, हाँ या ना। Hmm. दो वेरिएबल अच्छा। एक इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल। पहला सोल्यूशन निकाल के बताएगा कोई? y अभी देखो 1. 5 1 दिख रहा है, मैं एक बार पुट कर दूंगा 5 1। Hmm. अब 5 से अगर x का मूवमेंट ट्रैक करूं तो प्लस 7 होना चाहिए 12। हाँ. x और y ऐसे मूवमेंट करेंगे हाँ. तो और y में नेगेटिव हो -8 जाएगा. होना चाहिए, -7 जो पॉसिबल नहीं। -7. Hmm. अच्छा, यस ऊपर लेके जाऊं, 5 -7 ये -2 और ये 1 + 8 9, ये भी पॉसिबल नहीं है, Hmm. x नेगेटिव तो नहीं हो सकता। Hmm. ओनली सोल्यूशन इज दिस वन। किसी को फुल प्रूफ चाहिए तो ये फुल प्रूफ सोल्यूशन क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. यस सर। कैन वी गो अहेड? Yes sir. Yes, मूव sir. कर दूं सोल्यूशन प्लीज? Yes. Yes, सर ये sir. मैं सर हाँ जी सर बताइए।
सर ये मैंने मतलब यूएसबी के टर्म्स में निकाल लिया था, मतलब वन वेरिएबल्स में आंसर आ गया था, वाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यार ऐसे देखो आ तो नहीं सकता है, लेकिन आप मेरे को सर थोड़ा सा आया था explain बताइए कैसे किया। सर, पहले मैंने ना यूएसबी टू यूएसबी इक्वल्स टू ब्लूटूथ ले लिया, फिर एक माइनस इसने बोला कि यूएसबी से एक क्वांटिटी कम होनी चाहिए, तो मैंने यूएसबी -1 ले लिया, सर फिर दोनों एक की सेकंड, मैं प्राइसिंग थ्रो एक करके। सेकंड सर, सो सॉरी सर, सो सॉरी। -1 होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट अच्छा। +1 है, तो एटलीस्ट +1 में +2 भी हो सकता है। तो आप जो बोल रहे हो ना यूएसबी ले लिया उससे WC हम्म। वायरलेस चार्जर, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता अच्छा, है, समझे? ठीक है सर। रीड दिस लाइन, डिफरेंस एटलीस्ट 1 का है, एटलीस्ट 1 में 2 का डिफरेंस भी आ सकता है, नहीं तो अपन भी 1+1 इसमें लेके कर लेते तो आंसर आ जाता। वो लकीली आगे जाके बैठ गया, जरूरी नहीं ना y1 ही है, y2 भी हो सकता है। क्लियर है? गॉट इट सर, गॉट इट। शैल आई रिमूव दिस? तो एक चीज पूछनी है यस मैम पूछिए। सर। अभी जैसे अपन ने सॉल्व किया हिट एंड ट्रायल करके, जिसमें अपन एक को इंक्रीज करते हैं और एक वैल्यू को रिड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग हाँ टू द जी, कोफिशिएंट, तो अगर बीच में माइनस का साइन होता है तो दोनों इंक्रीज या डिक्रीज होती है, राइट? एग्जैक्टली उसका लॉजिक समझिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कुछ मनी है, मेरे पास कुछ मनी है, और अपना डिफरेंस बराबर है, अगर अपना डिफरेंस सेम रखना है, मेरा वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपका भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी डिफरेंस सेम रह सकता ठीक है। है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ अपन दोनों के मिला के 100 रुपए है, अब मेरा वैल्यू बढ़ेगा तो आपका कम होएगा, तभी सम 100 रह सकता है। ठीक है। तो एडिशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, सब्ट्रैक्शन में बोथ इंक्रीज या बोथ डिक्रीज चलता है। क्लियर है? यस सर। शैल आई रिमूव दिस? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, प्लीज। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. 53 बताने का है क्या किसी को? एक Yes, सेकंड, ये क्यों 53 बताने? Yes, sir. Yes, sir. Okay. A horse can consume as much grass in 3 days as a deer can in 7 days. Similarly, a cow can consume as much grass in 4 days as a horse can in 9 days. If it takes the deer and a cow combined total of 309 days to graze a particular field, how many days would it take for the horse, deer, and cow together to graze the same field? आपके पास एक हॉर्स है और एक डियर है और एक काऊ है। Yeah, horse can graze as much grass in 3 days as a deer in 7 days. मतलब 3 दिन में हॉर्स जो काम करता है वो काम डियर 7 दिन में करता है। Yes. मतलब इनका टाइम रेशियो 3:7 है, हाँ, तो इनका एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? 7:3. 7:3। हॉर्स एफिशिएंसी रेशियो डियर के साथ 7:3। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. Cow can consume as much grass in 4 days as a horse in 9 days. Cow हॉर्स का टाइम रेशियो 4:9 है, एफिशिएंसी रेशियो 9:4. कोई दिक्कत? यहाँ पे No, 4 और sir. यहाँ पे 7 लिख दूं? हम्म. ये 63, ये कितना हो गया 28 और ये 28. कितना हो गया 12। ये इनका एफिशिएंसी रेशियो है। हम्म. मतलब मैं ये मान रहा हूँ काउ, हॉर्स और डियर, काउ डेली का 63 यूनिट कंज्यूम करती है, हॉर्स डेली का 28 यूनिट कंज्यूम करता है और डियर डेली का 12 यूनिट कंज्यूम करता है। हाँ या ना? हम्म. If it takes a deer and cow combined total 309 days, deer and cow बोला ना, deer and cow 63 and 75. 12 हाँ. 75 into 309, इतनी ग्रास इनको, इतना काम उनको करने का था। हम्म. तो अगर हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर हॉर्स, डियर एंड काउ टुगेदर, तीनों काम करेंगे तो कितना हो गया? 63 103 हो गया डेली का। हम्म. कितना दिन लगेगा? इतना दिन लगेगा। सर यस मैम। सर मैंने ना डेज का रेशियो लिया था, अब उसमें कंबाइंड टोटल ऑफ 309 डेज भी लिखा हुआ है, हाँ, मतलब जब डेज का रेशियो कर रहे हैं तो आंसर गलत क्यों बैठ रहा है? क्योंकि मैम मैं बोलता हूँ ए कैन डू अ टास्क इन 4 days, बी हम्म. कैन डू द टास्क इन 5 days, टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 9 days। ये सही है गलत? नो सर, सही है गलत है? गलत है सर। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपन कभी भी डेज पे टोटल ऑपरेट नहीं वर्क, हाँ. करते, अपन 1 डे हम्म. वर्क की यूनिट पे ऑपरेट करते हैं। हम्म. समझ में आ गया?
हाँ सर. Shall we go ahead? Yes sir. sir. हटा दो इसको. हाँ. Yes, sir. Next please. 57. 57. 57 बोला ना. बताने का है किसी को? हाँ सर. नहीं Yes, हाँ sir. sir, yes sir. ऐसी सर नहीं बैठ रहा ये. बिठा देते मैडम. और सर ये क्वेश्चन देख के कितना लेंदी है. छोड़ दो. नहीं सर. अरे नहीं क्या होता है नहीं करने का भाई. Private bank extended a loan of 50,000 to Lal Mohan and 35,000 to Byomkesh, both for a duration of 2 years with the interest compounded annually. Lal Mohan's loan accrued interest at a rate of 6% during the first year, followed by 7.5% on the outstanding amount for the second year. Byomkesh loan, on the other hand, was subject to 2% interest rate in the first year and 5% in the second year on the outstanding balance. Lal Mohan and Byomkesh made payment of 12,000 and 9,000 respectively at the conclusion of first year. Who paid more interest and by how much during the loan period? Lal Mohan ने कितना उधार लिया? 50,000. लाल मोहन की बात करते हैं. Accrued an interest rate of 6% during the first year. फर्स्ट ईयर के एंड पे 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लग गया होगा? 3,000. तो कितना वैल्यू हो गया होगा? 53. 53. 53 में से क्या किया? Lal Mohan and made a payment of 12,000 at the end of conclusion of first year. 12,000 इसने चुका दिया. कितना बचा? 41,000 41,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? 7.5. कितना हो गया? 44075 सॉरी 44075 फाइनल अमाउंट अब फाइनल नहीं बताने का है ना सर. इंटरेस्ट बोलो. 3075 3075 कितना हो गया? 44075. ये सॉर्टेड है. Yes, sir. चलो अब चलते हैं व्योमकेश पे. 75,000 का लोन लिया. Yes, हाँ. sir. लेने के बाद क्या किया? इंटरेस्ट दिया पहले साल का. कितना परसेंट? 2%. 2%. कितना हो गया? 15,100. हो गया 76,500. हाँ या ना? Yes, sir. अगर 76,500 में से इसने चुकाया कितना? 9,000 9. बचा कितना? 67,500. इस पे हाँ. इंटरेस्ट कितना लगा? 5%. इसका 5% कितना होता है? 3375. अब इसने कितना चुकाया? 70,875 78. ठीक है. Hmm. Who paid more interest and by how much? इसने कितना इंटरेस्ट पे किया? 6075. 075. इसने कितना इंटरेस्ट पे किया? 4875 4875. किसने ज्यादा दिया? लाल ने. हाँ इसने कितना ज्यादा दिया? 1200. दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज. नहीं. No sir. चले आगे. यस Yes, sir. रिमूव कर दो सॉल्यूशन. Hmm. नेक्स्ट प्लीज. 58. 58. किसी को बताना है? No, sir. नहीं. Yes sir, एक बार बता दो, उसका आंसर नहीं निकल. डाउट है. बताया था. Set X contains 7 integers that have an average value of 75. ठीक है. The mean of all the numbers in the set X is equal to the median of the numbers. If the smallest number of set X is 15 less than half the largest number, then the minimum value of the smallest number in set X can. ठीक है. आपके पास 7 नंबर है. Yes इनका sir. एवरेज कितना है? 525. अरे 75. average बोल रहे थे. तो सम हो गया 525. 525. Hmm.
द मीन ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू मीडियन ऑफ द नंबर्स। इसका मतलब मीडियन कितना है? 75. यानी मिड वैल्यू 75। हम्म. If the smallest number of set x, यानी ये, let it be a, is 15 less than half the largest, 525 कैसे लिया? एवरेज है 75, 7 का 75 into 7 कर दूं, सम आ जाएगा। हाँ, तो a equal to b by 2 minus 15, यहां तक कोई दिक्कत आई? No, sir. नो सर। The minimum value of the smallest number in x can be, a की मिनिमम वैल्यू बताना है। अगर यार a को मिनिमाइज करना है तो b को मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्या बात कर, मिनिमाइज minimize. करेंगे ना? हाँ. मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? मिनिमाइज. Minimize. तो यार मिनिमाइज ही करना पड़ेगा। मिनिमाइज करेंगे। क्लियर करना पड़ेगा। मिनिमाइज भाई डायरेक्ट रिलेशन तो है, अगर b बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा ना। b को एक 50 रखो, एक 100 रखो, आंसर देख लेने का कॉस्ट में बढ़ा रहे। समझ में आया? यस हाँ सर. सर। b मिनिमम कितना हो सकता है? सर ये तो ऑप्शन से 76 ऑप्शन से कर सकते हैं मैम, कैन भी है, 100% कर सकते 78 हो सकता है ना? हैं। 78 हो सकता है। सर आपने मिनिमम पूछा था ना? हाँ, तो फिर तो 75 भी ले सकते हैं सर, क्या? 75 हाँ क्यों नहीं मिनिमम कर तो सकते मैम? 75. हाँ 75 पे हो सकता है। बराबर बराबर, लेकिन 75 नहीं होगा। कोई लॉजिक बता सकता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर डिवाइड बाय इंटीजर 2 बोला है। डिवाइड अरे बाय 2 हो यार, क्या जाएगा पर बकवास डेसिमल. बी करते हो तुम लोग। बी लार्जेस्ट 75 median नंबर है value है इसलिए। क्योंकि मीडियन वैल्यू है सर। सर अरे, बी नहीं लार्जेस्ट देगा। नंबर है इसलिए। के सारे बेवकूफ बैठे हैं यार। इंटीजर बोल रहा है तो डेसिमल में चल 75 जाएगा ना. एवरेज वैल्यू है सर। देखा, चलो ठीक है मैडम, ज्योति का अप टू अ लिमिट सही लॉजिक है कि भाई 75 अपॉन टू डेसिमल हो जाएगा, इंटीग्रल बोला है आपको। तो मैम 76 ले लूं क्या? हाँ सर. बराबर। सर बट वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना 76 में। कौन सी वाली मैम? सर ये जो आपने 525 का टोटल बिठाने की बात कर रहे हो आप। एग्जैक्टली, सम कैसे बिठाओगे भाई? अगर आपको ये पता है ये मीडियन है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। हाँ, आप बोल रहे हो ये 75 असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब इन दोनों को भी 75 ही रखना पड़ेगा फिर तो। हम्म. और ये वाली वैल्यूज छोटी है, चलो मैक्सिमम फिर भी 75 रख दूं, लेकिन आपने ये तो कुछ निकाल ही लिया। अगर ये सारी वैल्यूज ऐसी हैं तो फिर 525 आएगा ही नहीं भाई। हम्म. समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी? ऑप्शन से कर लूं, आपको चलेगा? हाँ सर. यस मिनिमम सर। पूछा है, किससे चालू करना चाहिए? 20. 20, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू वही है। हम्म. अगर a 20 है तो b कितना हो गया? 70। 70 ये पॉसिबल है क्या? नो सर। नो क्योंकि b सर। तो 75 से बड़ा ही होगा। हम्म. चलो हटा दो। यस सर. a अगर 25 है तो b कितना हो गया? 80 80। अगर ये 80 है और सम मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, इसको भी 80 ले लो, इसको भी 80 ले लो, चलेगा? यस सर। तो और भी ये सब आपका बैठेगा सर. ये आपका 25 है, चलेगा? हाँ। चलो अब एक बार ऐड करके देखते हैं, 80 80 80 75, जल्दी से बताइए कितना हो गया? 315. 325 340 340। कितना सम बचा आपके पास? 340 185. 185। इनको मैक्सिमम 75 ही पुट कर सकता हूँ मैं, उससे बड़ा तो पुट ही नहीं कर सकता। यस सर। तो 185 बैठेगा क्या? नहीं. नहीं, नो सर। हटा दो। ठीक है, एक सेकेंड रुको, हटा देते हैं इसको। चलो ठीक है, अब मैंने मार्कर लगाया, इसको हटा दिया। अब आते हैं 30 पे। अच्छा, अगर a को 30 लिया तो b कितना हो जाएगा? 90 90। ठीक है, हम्म. अब मैं चाहता हूं 3 नंबर का सम कितना आ गया? 90 120 195 आ गया। हम्म. यस बढ़िया, सर। 195 है, और बाकी सम कितना बचा? 330। 330। अबे हाँ जी। 330 लाना है मेरे को, कैसे भी ले आऊंगा यार, क्या दिक्कत है? मतलब आई एम टेकिंग देम टू बी 90 90। हाँ. 180 गया, 150 और लाना है।
हाँ 150 और लाना है, 75 ले लूं आगे? क्लियर है? यस Yes, सर sir. चलें आगे? यस सर। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था यस मैम। कि जस्ट इन केस अगर ऑप्शंस वाला नहीं होता तो आप ये जो आपने मैक्सिमाइज करने के लिए किया वही करेंगे ना अपन लोग फिर? मैम उससे कर नहीं पाएंगे, जस्ट इन केस अगर ऑप्शन वाला नहीं होगा तो कैन बी कैसे आएगा? ओके सर। चलें आगे मैम? हाँ जी। Shall I remove this? यस सर। यस सर। Next out please. 58 के बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोला था? 59। 59. बताने का है किसी को? नो सर। Anyone No, feels sir. like- नहीं पक्का श्योर? सर चलें आगे? सर ये मेरा सर, गलत आता था, एक बार बता दीजिए सर प्लीज। सर इसमें डायरेक्ट अमन क्यों नहीं हो सकता? सर नो आइडिया, मैंने ना तो मॉक दिया, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ सर प्लीज। Rajesh started a boutique with an initial investment of 40,000. 4 months later, his friend Aman joined him with an investment of 30,000. 2 months later, after Aman's investment, Rajesh's cousin Neeta contributed 60,000 to the boutique. After a year of successful operation, they decided to close the boutique and split the profit of 45,000 minus 20% working commission for Rajesh. Who earned the least profit? ठीक है, राजेश को कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालता हूँ? 40,000 into 12, then this 30,000 into 8. 8 and then 60,000 into 6 यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? No. नो ठीक है, सर। 40 काट दिया, 36 और ये 24 और ये 48, 12 से काट रहा हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. So I guess the ratio turns out to be 4:3. यस सर। ठीक है, अभी आपको लीस्ट प्रॉफिट बताने का है। जिसमें से सर 20% वर्किंग कमीशन राजेश को मिलेगा 45,000 में से। राजेश को 20% वर्किंग कमीशन और मिलेगा। 9,000. 9,000 हो जाए। नहीं 9,000 तो सही है। Who earned the least profit percentage? अच्छा, so sorry, मेरे को लगा प्रॉफिट पूछा है। They are asking me the profit percentage. राजेश को कितना मिला? पहले 9,000 मिला, हाँ समझ में आया? 9,000 हाँ सर। Yes, sir. 9,000 के बाद 45 में से 36,000 बचा, which is to be divided in the ratio of 4:3. तो इसको 16,000 मिलेगा, मतलब 25,000। राजेश के बाद अमन था, अमन को मिला मेरे हिसाब से 8,000। 8,000. और तीसरा बंदा कौन था? Neeta. नीता नीता को मिला 12,000। 12,000. 12,000। इसको 8,000 कितने पे मिला? 40 36। 30,000. 30,000 पे मैम। अच्छा सर, ओके। और इसको 12,000 कितने पे मिला? 60। 60,000। 60. हाँ सर, समझ में आ गई गलती, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था सर। तो नीता को 20% ही तो मिला और इसको तो ज्यादा मिला है 20 से। That should be the correct answer. Shall I remove this? एक क्वेश्चन था, Yes ma'am, please. आप जब राज का परसेंटेज निकालेंगे तो आप 25,000 कंसिडर करेंगे या फिर 16 कंसिडर करेंगे? 25 ओके सर। प्रॉफिट मिला है अल्टीमेटली, कैसे भी मिला हो, योर वर्किंग पार्टनर, योर स्लीपिंग पार्टनर, व्हाट इज बीइंग कंसीडर्ड इज द टोटल प्रॉफिट दैट यू आर अर्निंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अंडरस्टूड। एंड सर राज की कैपिटल क्या कंसिडर करेंगे? 40,000। 40 करेंगे, ओके। Yes ma'am. Shall I फिर remove इसमें this? मंथ्स का कोई रोल नहीं होगा ना? मैम परसेंटेज कैलकुलेशन पे मंथ्स का रोल नहीं होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तक मंथ्स का रोल रहेगा। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेशन जो है ना, इसमें मंथ का कोई रोल नहीं है। Shall I remove this? यस सर। Yes, sir. Sir, Next please. 61. 61। बताने का है किसी को? हाँ सर, हाँ सर, प्लीज बता दीजिए सर। बता देते हैं सर। और भी किसी का डाउट है? हाँ सर, मेरा भी। बता देते हैं। Vinod purchases 70 liters of olive oil at a certain cost and decides to mark up the price by 20%. He sells 5 liters at the mark price and 25 liters at 25% discount on the mark price. Unfortunately, 6 liters of olive oil are spoiled during transit. To achieve overall profit of 20%, increases the existing mark price by X%, determine the value of X. Look, I am assuming the cost price to be 100 per liter.
सो मेरा टोटल सीपी हो गया 7,000 रुपए। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर। नो और सर। मेरा टोटल एमपी हो गया मेरे हिसाब से 8400, 20% हाँ बढ़ा सर। दिया, कोई दिक्कत? यस सर, यस मतलब हाँ 8400। No, sir. नो दिक्कत, नो दिक्कत। 4 कैटेगरीज में जाएगा। पहले 70 लीटर्स में से क्या किया, 5 लीटर्स को उसने मार्क प्राइस पे बेचा। मार्क प्राइस था 120 पर लीटर, 5 लीटर का 600 रुपए हो गया। हाँ हाँ यस। अगला 25 लीटर उसने 25%, 120 पे 25% का ऑफ दे दिया, 90 रुपए में बेच रहे हो, यस सर। 2250 का होगा। हाँ उसके बाद 6 लीटर वेस्ट हो गया, मतलब फ्री में चला गया, 0 रुपीज मिला इसका तो आपको। हाँ सर। हाँ 25, 5, 30 और 36, 36 लीटर गया, यू आर लेफ्ट विद 34 लीटर्स। यस सर। Yes, sir. What you want at the end of the year is 20% profit. आपका टोटल सीपी 7,000 था, प्रॉफिट चाहिए 20%, टोटल एसपी कितना होना चाहिए? 8400। 80 आउट ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी अर्न 2850। सर टोटल एसपी कैसे आया था इसमें? सॉरी टीएसपी कैसे आया था? टोटल एसपी? सर, 7,000 पे 20% का प्रॉफिट जोड़ देने का है ना। अच्छा यस यस यस, हाँ ठीक है सर। 2850 का आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, इसका एसपी बताएगा कोई? 5550। 5550, राइट? यस सर। ठीक है, दिस इज पर लीटर, 34 लीटर्स पर लीटर बताएगा? 163.25। एग्जैक्ट आ रहा है मैम? सर मतलब 163.235 करके कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। और ये कब आया, जब आपने 120 वाले को फिर x% से इंक्रीज कर दिया था। यस सर। x का वैल्यू निकाल लेंगे या करके बताऊं? उधर आ जाएगा सर। हो जाएगा। सर 34 था, 5 कैसे आया था सर? 34 से 5550 दिस वैल्यू। नहीं, 5550 34 से नहीं आया सर, आपको टोटल 8400 का एसपी चाहिए, आपको अच्छा 28 मैंने जितना नहीं यूज कर है। लिया, हाँ ठीक है ओके ओके फाइन। ठीक है, shall I remove this? यस सर। Yes, sir. sir. Going ahead, next Sir, question. 45, 42, Sorry? part 2. 45, one. part 2 start हो गया. बताने का है किसी को? Yes, sir. मेरा आंसर 64 Yes, है sir. सर। A quadratic equation px square plus 2x plus r equal to 0 is such that coefficient pq are increasing arithmetic progression. Alpha and beta are its root. P plus q plus r equal to 12. Alpha beta equal to -6. बहुत कुछ दे रखा है। अगर p q r ap में है, can I take p को a, q को a plus d, sorry a plus d, sorry A minus T. yes, a minus t, a और r को a plus t ले सकता हूँ क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आपको दे रखा है p plus q plus r equal to 12, इससे a का वैल्यू कितना आ गया? 4. 4। तो आपके पास p का वैल्यू आ गया 4 minus d, q का वैल्यू आ गया 4 और r का वैल्यू आ गया 4 plus t। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. अल्फा बीटा क्या होता है? R by Sir, Q. roots R by इसका P. रूट क्या होता है? minus C. Sorry, C by A. c by a। ये आपको -6 दे रखा है, Hmm. ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दूं। 4 plus d equal to -24 plus Plus 60. 60. I'll have 70, sorry, plus 60 है ना। I'll have 5d equal to 28 और d equal to 5.6। हाँ या यस ना? सर। Yes, sir. चलो ठीक है। अब आपसे पूछा पी क्यू आर। 4 minus 5.6 कितना होता है? -1। Minus 1.2. 4 कितना होता है? 4 और 4 plus 5.6 कितना होता है? 9.6। कोई मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता है? देखो इसमें से 61। दो नेगेटिव 61. वैल्यूज हैं और ये हो नहीं सकती बिकॉज डेसिमल वैल्यू आएगा, दिस शुड बी द करेक्ट। ओके सर। पॉजिटिव आएगा नहीं सर रिजल्ट। आपने Sir? a is equal to 4 कैसे लिया? इक्वल टू 4 सर जादू कर दिया मैंने। मालिक ये 3 वैल्यूज दे रखी ना, a minus b plus a plus a plus d equal to 12, p plus q plus r equal to 12, ये माइनस d से प्लस d कट गया, 3a equal to 12, a equal to 4। हाँ या ना? हाँ सर। यस। और कोई कुछ बोल रहा था?
सर ये अपन ने 2Q इक्वल्स टू P प्लस R करके क्यों नहीं किया? 2Q इक्वल टू P प्लस आर कर देता मैं 2Q इक्वल टू P प्लस आर, बट मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपका फोकस क्या है? PQR, AP या अल्फा बीटा? लीस्ट प्रायोरिटी पे कौन आ रहा है? ये पॉइंट की वो PQR है जिनका सम 12 है, ये पॉइंट की वो AP में है, या फिर ये पॉइंट की वो अल्फा बीटा इक्वल टू -6 है? सबसे कम इंपॉर्टेंस किसका है? अल्फा बीटा। मेरे हिसाब से कि वो AP में है, बिकॉज वो पॉइंट नलीफाई हो चुका है जैसे आपने वैल्यू अज्यूम किया। हाँ ठीक है ना, फिर अब क्यों जाने का AP? जैसे ये हाँ, वैल्यू क्योंकि वैसे वो बैठ ही नहीं रहा था। P प्लस आर। सॉरी। भाई आप क्या बोल रहे हो? आप इसमें P प्लस आर को 2Q डालना चाहते हो ना, हाँ तो उधर से Q का वैल्यू 4 आएगा। हाँ, जैसे मैंने 147 ये बैठ रहा पॉइंट लिया था। तो मेरा भी Q का वैल्यू 4 आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन, आपका पेन, आपकी कॉपी, जो सर बनेगा। बट जैसे Q इक्वल्स टू 4 लिया तो वो 1 + 4 + 7 आ रहा था, तो वो मैम पॉसिबल ये नहीं था। आपको किसने बोला कि डिफरेंस 3 का आएगा? अच्छा। समझ यस गए? सर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्लीज। 49। 49, राइट? हम्म। Shall I remove this? Yes, sir. यस यस सर। सर 55 है। पता नहीं, अब मैं हाँ सर 55 है। 49 तो सर मैंने थर्ड 49 में आपने 49 बोला नहीं था है, ना की। सेकंड। 49 थर्ड पार्ट में है। मैडम थर्ड में हाँ ओके सर, सॉरी सर। 55 है। यस सर। बताने का है किसी को? यस सर। नो सर। सम ऑफ फर्स्ट 41 का यस बताना है। सर, नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन हो गया था लेकिन प्रोसीजर था, तो बस यही पूछना है कि प्रोसीजर शॉर्ट वगैरह कुछ हो सकता आपका है क्या? प्रोसीजर बता दीजिए, मैं बेटर होगा तो मैं बता दूं। सर मैंने 7 को 5 + 2 करके लिखा था, 7 को 5 एक + 2 + 4 एक सो सॉरी अच्छा, टू इंटरप्ट। हाँ जी। 5 प्लस, प्लस 2। यस, 5 + 2 + 4 एंड देन 5 + 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, तो मतलब जनरलाइजेशन हो गया। हाँ जी, और फिर उसके बाद में 5 आपका 41 टाइम्स आ गया था, कंसिडरिंग कि इन सब में से 5 आपने कॉमन निकाली। हाँ फिर इन सारे के सारे नंबर्स में से मैंने 2 कॉमन निकाले, तो बाकी के अंदर में आपके सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्रिएट हो रहा था ओके। कि 2 आपने कॉमन निकाला सेकंड वाले स्टेटमेंट में से, तो आपका 1 बचा। थर्ड वाली लाइन में से आपने 2 कॉमन निकाला, तो आपका 1 + 2 3 बचा। हाँ तो ये करते करते मैंने फिर उसके बाद में नेचुरल नंबर्स का सम करके निकाला था, तो फिर आंसर तो आ गया था। सही है मैम, अप्रोच कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। तो लेंदी नहीं लग रही आपको? लग रही है। तो सर ये कोई 2 क्वेश्चन 4 देने 6 8 से बेटर नहीं रहेगी? 2 की टेबल चल रही है। मैडम अब सबको 2 की टेबल थोड़ी ना आती। चलो ठीक है, देखिए मैं भी लगभग लगभग ऐसी ही अप्रोच बताऊंगा, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होंगे, वी कैन जस्ट फिगर इट आउट। अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट फॉर दैट। ये मेरा जनरल टर्म आएगा मैम, आपको ये समझ में आएगा? सर ये कैसे आया? जादू से। अच्छा सर ये लगा क्या कैसे? जादू? सर प्लीज बता दो। यार मैडम जादू पसंद नहीं आएगा? पहले को बैठ के बिठा के देख लेंगे, बैठ रहा है बैठ रहा है, आगे जाके बेइज्जती हो तो क्या मतलब है? n² - n+5 ये जनरल टर्म आ गया, मैं पूरा बता दूंगा, बट ये समझ में आ गया इधर से ये कैसे आया? हाँ। ठीक है, आपको S41 निकालना है, तो n² का समीशन क्या होता है? n प्लस +1 1 2n + 1 2n+1 बाय 6 डिवाइडेड 6 माइनस n का समीशन क्या होता है? n n × n + 1 n into n plus डिवाइड 1 बाय प्लस divide 5 by का 2. समीशन क्या होगा? 5 × 5 41। × 41। 41. सॉल्व करना इजी लग रहा है तब तो मैं बताऊं, नहीं तो आप बोलो सर ये भी लेंथी है, तो फिर मैं कुछ और सोचूं। नहीं नहीं सर, ये इजी है, कोई नहीं नहीं सर ये इजी है. चलो बढ़िया। अब देख, सेकंड टर्म में जाके आप
एक इवन नंबर ऐड कर रहे हैं 5 में, हाँ थर्ड टर्म में जाके आप 2 इवन नंबर्स ऐड कर रहे हैं 5 में, हाँ फोर्थ टर्म में जाके आप 3 इवन नंबर्स ऐड कर रहे हैं, और फिफ्थ हाँ टर्म में जाके आप 4 इवन नंबर्स ऐड कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। मतलब nth टर्म में जाके आप n-1 N इवन नंबर्स ऐड कर रहे होंगे। हाँ ओके, सम ऑफ n इवन नंबर्स किसी को याद है क्या? यही तो दिक्कत है ना तुम लोगों के साथ जिंदगी में। n into n टू plus 1 n स्क्वायर, यार किसी को कुछ नहीं आता, सारे 2n स्क्वायर। अबे कुछ भी बोलने से नहीं होता है ना, n into n plus 1 2n plus 1 by 6. सारे ही नवाब हैं। Sorry. मैं सर क्या यही समझा बोला रहा हूँ? था। n अरे अब तो मैंने लिख दिया, अभी भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम लोग। अच्छा n इवन into n नंबर। plus 1। हाँ हाँ मैम, अभी तक मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, मुझे शुरुआत के n सम नंबर्स का चाहिए। इवन को हिंदी में सम बोलते हैं और ऑड को विषम बोलते हैं, इसमें बात करूं? नहीं सर। हद हो गई यार, तुम लोगों को समेशन n इवन नंबर्स नहीं आता है, कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को आगे की चीजें? समेशन ऑफ n-1 इवन नंबर्स निकालना होगा, अब मैं क्या करूंगा? सर n की जगह n n माइनस minus ये one n-1 हो जाएगा और n-1 + 1 ये n हो जाएगा। n हो जाएगा। ये जादू को मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। सर चलेगा? यस सर। इसके आगे का तो समझ में आ गया, पूरा एक्सप्लेन करने की नीड है? आ गया सर। एनीवन सर एल्स हैविंग अ डाउट कैन आस्क अगेन प्लीज। यस। आपने इसकी टर्म को जनरलाइज कैसे किया, बस वो नहीं आया। मैडम मैं मेरी जिंदगी की कहानी थोड़ी सुना रहा था अभी तक। तो वो वाला प्रोसेस आता है, इसको कैसे क्या पुट करना है। मैडम पहले 5, जब पहला टर्म था ना, पहला टर्म तो मैंने 0 इवन नंबर ऐड किए थे। जैसे ही दूसरा टर्म आया ना, तो मैंने 1 इवन नंबर ऐड किया। तीसरे टर्म के लिए मैंने 2 इवन नंबर ऐड किए। चौथे टर्म के लिए मैंने 3 इवन नंबर ऐड किए। पांचवें टर्म के लिए मैंने 4 इवन नंबर ऐड किए। तो nth टर्म के लिए मैं n-1 इवन नंबर्स ऐड करूंगा, और ओके ये रहा समेशन ऑफ n-1 इवन नंबर्स। अच्छा ओके, आपने उसी को, ठीक है हो गया सर। क्लियर है? यस Anyone सर else having? Yes ma'am please. सर मैंने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था, वो ax² वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो कर सकते सेकंड हैं लेवल। 100% वो सेकंड लेवल पे जाके हो जाएगा। सर वो ज्यादा इजी रहता है या फिर क्या? मैम पर्सनल परसेप्शन है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। 5, 7, 11, 17, वो तो 25 क्या था, राइट। हाँ तो वो दिस क्या इज था? 2, 4, 6, 8। यहाँ पे जाके आपको दिख गया 2, 2, 2। यहाँ पे दिख गया 2, तो ये भी 2, ये 2 तो ये 0, ये 0 तो ये 5। नहीं सॉरी, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? मतलब हाँ जो भी है, तो ये आपका C आ गया, और 2 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका A आ गया। 2 डिवाइडेड बाय 2 A और C पता है तो B निकाल लेंगे आप, कोई बड़ी बात। 1 आ रहा था अभी। हाँ तो ठीक है, ठीक बैठ है जाएगा। मतलब कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको मेथड आता है ना, तो यू कैन गो विद इट, नो इश्यूज। सर ठीक है। यस मैम। एक बार सर, एक बार आप इमेज चेक करिए ना, व्हाट्सएप किया मैंने। क्लास के बीच में फोन यूज नहीं करता हूँ। सर प्लीज। क्या है? क्या चाहते हो आप? मतलब मैं बताऊं ये गलत है जैसा ही है? हाँ मतलब मैंने d इक्वल्स टू 2n रखा, उसके बाद 205 + 656n आया, उसके बाद ऑप्शन पुट करके देख लिया, जहाँ वैल्यू बैठ गई वो इस एक ही में बैठ रही थी, 35 आ रहा था x। मैडम मतलब लीगली ऐसा नीचे कोई गिरा। मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत फर्जीवाड़े वाला था, बट ठीक है आपका बैठ गया तो अच्छी बात। मत करो ठीक है, प्लीज ऐसा। ओके सर। Shall I remove this? यस सर। Next Yes, please. sir. The 56. कहाँ गया? हाँ बताने का है किसी को?
एक मिनट हाँ हाँ, कहीं नहीं भाग रहा मैडम। हाँ सर बता नहीं दो। नहीं सर 62 आएगा ना। हाँ 56 तो था ही नहीं यार, ये तो मैंने सर पार्ट 3 में डलवाया। 56 है। सर सर 56 है। 56 है। हाँ मैंने भी लिखा है सर। थर्ड हाँ पार्ट इसको थर्ड में डाल दो। देखो मैं थोड़ा ऐसे ही आजकल दिमाग कम चलता है, मैं लिखवा देता हूँ। गलत है ये, नहीं हो पाएगा तुमसे, छोड़ दो। और सर इसके ठीक है बाद तो 65 आएगा ना, 66 थोड़ी नहीं ना नहीं आएगा। 62 आएगा, 62 आएगा दीदी। मैं क्या हाँ इतनी जल्दी बोलोगे कि तुम लिख भी नहीं पाते हो? सर मैंने तो सारे लिखे हैं नहीं सर परफेक्ट। 62 आएगा इसके बाद। हाँ 62 है, सॉरी सर। हाँ बताने का है किसी को? नो नो सर। नो सर। एवन? यस नो सर। सर। यस। किसने पूछा है वैसे? सर ज्योति। ज्योति। देखो मैडम, देखो यार एक बात ऑब्जर्व करो कि सबका बेस 2 है, हम्म। तो बेस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ। मतलब ए के लिए मैं बेस को हटा के केवल इतना सॉल्व कर लूं, चलेगा आपको? हम्म। हम्म। बी के लिए केवल इतना सॉल्व कर लूं, सी हम्म। के लिए केवल इतना सॉल्व कर लूं, और डी हाँ। के लिए केवल इतना सॉल्व कर लूं, चलेगा क्या? हम्म। क्योंकि बेस सबका सेम था, हटा दिया। हम्म। इसको हमेशा ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज 2 की हाँ। पावर 2 4 एंड व्हाट इज 2 की पावर 4? 16 ये 16 आ गया। 22 का स्क्वायर 440 484 सॉरी। हाँ 2 की पावर 22 को आपको सॉल्व करने की इच्छा है, आप कर लो, मुझे नहीं आता है। सबसे छोटा कौन है? 16 16। 8। फिर हाँ हाँ नहीं, बी फिर सर। बी। फिर 484 भी। बी, फिर डी फिर सी ठीक है। सर 2 की पावर 22, मतलब अपन 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर इंटू 2 मैडम की पावर 2 की पावर 12 10 से कितना होता है? 1024। तो ऑलरेडी एक्सीड कर गया ना, क्यों आगे दिमाग लगा? हाँ सर। समझो ना, थोड़ा सा है, बचा के रखो, काम आएगा मैडम, ये तो कैट हो गया। Shall I remove this? यस सर। यस सर यस यस सर। सर। Next please. 65। 65। बताने का है? यस सर यस सर। यस सर। हाँ है। If k equal to 7k cube plus 8 की power 1/6, determine the average of all possible positive integral values of. क्या बकवास है यार, ये क्या डाउट है? 1/6 को इधर ले आऊं क्या? यस सर। सर 7k³ प्लस k 8। हाँ। क्यूब को x ले लूं क्या? हाँ स्प्लिटिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। x माइनस 8 x प्लस 1, x इक्वल टू 8 या फिर x इक्वल टू -1। अगर x 8 है तो k क्यूब 8 है, और अगर k क्यूब 8 है तो k हो गया 2। x -1 है तो k क्यूब -1 है, और k क्यूब -1 है तो k हो गया -1। इन दोनों का एवरेज हो गया। पॉजिटिव पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, 2। 2 का एवरेज 2 होता है। क्लियर है? जिसका भी डाउट था? यस सर। यस सर। एनीवन एल्स? क्लियर है? शैल वी गो अहेड? यस सर यस सर। नेक्स्ट प्लीज। सर यस मैम। सर ये जैसे कि हाँ ये इजी सोल्यूशन था पर वापस सर चाहिए क्या? कब। नहीं सर मेरे को एक डाउट है। यस मैम बोलिए। सर जैसे ये उस वक्त क्लिक नहीं करा ये चीज, तो हाँ मैक्सिमम कहाँ तक चेक करे फिर उसके बाद छोड़ दे हम चेक करना, मैम मतलब कि देखिए इतना रेंज तक कि आ ही जाएगा या फिर। मैम, दो चीजें। एग्जाम में आपको ये स्ट्राइक नहीं करा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, यस कोई बड़ी सर। बात, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानते हैं तो आप ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जहां पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए वो तो करना ही नहीं है, बिकॉज इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ओके सर। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मैं बोल दूं कि 2 पे लिमिट कर देना, 3 पे लिमिट कर देना, 4 पे लिमिट कर देना, इसका कोई लिमिट नहीं है। -∞ टू +∞ सब चलेगा। ओके सर। बस जाते इन्होंने बस इतना सा बोला कि पॉसिबल पॉजिटिव, तो आप 0 से इंफिनिटी ले लीजिए, लेकिन तो भी नहीं कर हाँ पाएंगे। मेरा सजेशन है बेटर नॉट टू गो फॉर दिस अंटिल अनलेस ये स्टेप आपको स्ट्राइक करता है। अगर ये कर गया फिर तो बहुत सिंपल है, फिर तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे।
ये नहीं Yes, sir. करना है तो फिर नहीं करने का। अगर आप ये सोचो कि सर मैं के का वैल्यू पुट करके देख लूं हिट एंड ट्रायल से वो बैठ जाए, नहीं बैठेगा। मैं Yes, बेट लगा sir. नहीं बैठ। हाँ. ठीक है, Okay, sir. Okay. चल आई रिमूव दिस। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, प्लीज। sir. Yes, sir. 46. 46. बताने का है किसी को? Yes, sir. Three siblings are each given a certain number of rare coins. The eldest sibling counts their coin and realizes that the sum of the coins held by the youngest two siblings equals the number of coins held by the eldest. The number of coins each sibling has is a prime number. क्या बात कर रहे हो? The youngest sibling has fewer coins than the middle one. Okay, ठीक है. How many distinct values are possible for the number of coins with the eldest son if it is known that the number of coins with him are between 130 and 160? किसी का हुआ क्या यार ये? सर मेरे को एक डाउट है, फ्यूअर कॉइन्स अब ये थोड़े से कम या कम कितना बस? भी कम हो सकता है, तो सर कितना प्राइम नंबर चेक करेंगे हम लोग? अभी चेक कर रहे बताते हैं। थे वो लेकिन सोल्यूशन बहुत तो मैं टाइम बताऊंगा, लगा। मैं पूछ रहा हूँ किसी का हुआ क्या? नहीं किसी का भी नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। नो सर। चलो यार, हाँ, किसी को सर कुछ बोलना मैंने है? हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर मैंने ऐसे किया था कि 2 आ रहा है, मतलब जो उन डिफरेंस है ना, चलो देख लेते हैं मैम। वैसे रख एक, के देखा एक था मैंने। छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ऐसा बोल रखा है कि जो एल्डेस्ट के पास है वो मिडिल प्लस यंगर के इक्वल है। द नंबर ऑफ कॉइन्स हेल्ड बाय द यंगेस्ट टू सिबलिंग्स इक्वल द नंबर ऑफ कॉइन्स हेल्ड बाय द एल्डेस्ट। ये एक क्रक्स है इस क्वेश्चन का जहां से आप आंसर निकाल सकते हो, केवल एक लाइन। यार एक बात बताइए, अगर सारे तीनों के पास प्राइम नंबर है तो प्राइम इवन होता है ऑड होता है? सर 2 को छोड़ के सारे ऑड होते हैं. अगर दोनों ऑड प्राइम नंबर ले लूंगा तो रिजल्ट इवन आएगा ऑड आएगा? ऑड। हैं? इवन। Even, सॉरी sir. सॉरी सॉरी सॉरी। इवन Even आएगा सर। सर। क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि फिर मैं कुछ बोलूं? नहीं नहीं सॉरी सर। इवन है। और ये अगर नंबर इवन हो गया तो ये प्राइम हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। सर इसका मतलब इन दोनों को ऑड नहीं बनाने का, दोनों को ऑड नहीं बनाने का मतलब एक को इवन बनाने का है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. यंगेस्ट के पास दो से वो थे अपने पास, क्या? 2 कॉइन्स थे। Yes, sir. अब थोड़ा सा हार्ड वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ कॉइन्स विद हिम, मतलब एल्डेस्ट सन, इज बिटवीन 130 एंड 160। आपको केवल इतना सा करना है कि मुझे 130 और 160 के बीच के प्राइम नंबर्स बता दीजिए। इसका मैं 131 कोई ऑल्टरनेट नहीं बता पाऊंगा, मेरी सुनिए, इसका मैं कोई ऑल्टरनेट नहीं बता पाऊंगा बिकॉज प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं होता। निकालिए। 131 प्राइम है क्या? 131, हाँ, 131. 133, 37 137 133 नहीं है? नहीं, No, sir. 135 चेक करूँ क्या? No, नहीं, sir. नहीं है 137, 139, Yes, sir. 130 हाँ Yes, sir. 141, नो नहीं सर, है 144, 43, नहीं नहीं, 149 है 149 149 है, है सीधे। फिर नेक्स्ट फिर 151, 151 और 157 157 बस, और कुछ है? नहीं No, नहीं, sir. एल्डेस्ट के पास अगर 131 है तो 129 प्राइम है क्या? नहीं, वो 129 चेक करके बताएगा कोई प्राइम है या नहीं है? प्राइम नहीं, नहीं है। नहीं है सर नहीं प्राइम. है, 3 का नहीं सर, मल्टीपल आ रहा है। हाँ. टीवी टेबल में। तो मैं एल्डेस्ट को देखो, दोनों का डिफरेंस 2 का है, इधर से निकालूं एल्डेस्ट माइनस मिडिल इक्वल टू यंगर, 137, 139 तो ये नहीं दे सकता 131। 137 दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि हाँ, 135 नहीं आ रहा है। एल्डेस्ट को 137 नहीं दे सकता हूँ ना मैम? नहीं नो सर। नहीं। हाँ, 139 दे सकता हूँ क्या? हाँ यस हाँ। सर। हाँ, 149 दे सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं 151 दे सकता हूँ क्या? हाँ, Yes, sir. 157 दे सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं। नहीं। No, Only sir. two values are possible. The crux was this line. समझ में आया? यस सर, कभी भी दो नंबर को, दो प्राइम नंबर को ऐड करके एक प्राइम नंबर आया ना, इसका एक ही सोल्यूशन है कि उनमें से एक नंबर हमेशा इवन है, which is 2।
पर चुप क्यों हो गए, समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Great. Just allow me 1 minute. बैठ के देख लेता हूँ। क्लियर कर दूं ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज 47. 47. बताने किसी को। Yes, sir. Yes, sir. A school art competition involves creating different triangular designs for a large mural. What is this? Each पेंटिंग tri- होती है सर एक. मेरे को भी पता। Each triangle must be right angled with base and height. ठीक है? As whole numbers. Okay. The total area of each triangle needs to be exactly 882 centimeters square. Oh. How many distinct triangles can be made for the mural? मैम अगर सारे triangles right angled हैं, Yes, let sir. it be x, let it be y, तो area of right angled triangle क्या होगा इसमें? 1/2xy. half xy. Yes, sir. Yes, sir. y कितना हो गया? हाँ. सही बोल रहा हूँ क्या? हम्म. How can you get the product of two numbers as 1764? Factors. बताओ जल्दी जल्दी, मैं थोड़ी करूंगा सब। 1 minute, sir. 293 प्राइम फैक्टराइजेशन 4 किया में था. 588. 3 भी तो आएगा 588. 588. 588. 4 के साथ, 440. 441. 5 के साथ नहीं आएगा, 6 के साथ नहीं आएगा. 294. 7, 252. 8, सर 8 के साथ नहीं आएगा. आएगा. 8 के साथ नहीं आएगा, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9, 196. 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12, 147. 13 नहीं आएगा, 14, 126. 15, सर नहीं आएगा. 16, नहीं. 17, 18, 18 के साथ आएगा सर 98. 19 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 98 ना, 21, 21, सर 21 आएगा, 21 के साथ आएगा 84. 22, नो. 23, 24 नहीं आएगा, 25, 26, 27 सर नहीं आएगा, 28 के साथ आएगा. 28 आएगा सीधे, यस सर. 63. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बोल दो ना यार। सर मैं देख रही हूँ. 36 के साथ 49. मेरे को लगा आपके पास लिखे हुए हैं। तो मैम मिस तो नहीं कर दिया ना आपने कहीं बीच में कोई? नहीं सर 36 into 49 आएगा लास्ट. और कोई, और भी No, कोई sir. देख रहा है? सब बैठे हैं ऐसे मस्त। मुझे देख रहा हूँ। कुछ मिस हुआ? सर 42 into 42 आएगा लास्ट. और कोई मिस हो रहा है? बाकी पता नहीं सर. यार देखो, अगर ये नहीं चाहता सर, था अब इतना ही. 42 का स्क्वायर है क्या ये? रुक जाओ मैं चेक यस कर। सर. हाँ 42 का स्क्वायर है. 42 का स्क्वायर क्या होता है? 236, 237 होता है ना 42 का। 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? श्योर. हाँ तो सर ये इतना निकालने में ही टाइम लग जाएगा ना. मैम, इतना निकाल दिया तो आंसर आ गया ना, 14 ही तो आंसर है भाई। बट आप ये अगर खूब ऐसा टाइम बोल हो रहे हो, जाएगा ना. मैं बताता हूँ उसका भी जुगाड़ बताऊंगा। अगर आप हाँ. ऐसा बोल रहे हो कि
x इंटू वाई इक्वल टू 1 इंटू 176, तो x को 1 ले लो, y को 1764 ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ सर वो तो आ गया बट ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा ये ना। सबको समझ में आ गया कि 14 केसेस बनेंगे। हाँ हाँ अब अभी आपने देखा मैंने 42 को लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर हाँ कुछ को ऐसा 2 2 2 लिखा, स्क्वायर, फिर हाँ मैंने उसका चेक वो करके टाइम देखा कि आए तो फैक्टराइजेशन है। सही है। वो मैंने क्या किया था, कोई समझा सकता है मुझे? सब प्राइम नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स निकाले थे सर आपने, 3 नंबर ऑफ into 3 फैक्टर्स, into कितने 3 फैक्टर्स आ रहे हैं मैम इसके? 27 और 27। एक रिपीट हो 27। रहा है। और अगर किसी भी नंबर के 27 फैक्टर्स आते हैं तो उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? सर +1 डिवाइड बाय 2। कंसीडरिंग की इक्वल केस अलाउड है तो +1 डिवाइड बाय 2 खत्म, आंसर समझ में आ गया? हाँ सर सर आप ये आ गए। +1 डिवाइड मैम बाय 2 नहीं आपने, आया। ज्योति ज्योति आपने अभी पढ़ा नहीं है नंबर सिस्टम, अच्छा ओके। ये चक्कर क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो कैन आस्क मी अगेन, पता है? नो सर। पक्का? शैल आई रिमूव दिस? यस सर। और अभी जो आपने लास्ट में बताया ना मुझे वो समझ नहीं आया। क्या बात करूं, सही में समझ में नहीं आया? नहीं सर सच्ची समझ बढ़िया नहीं बात है ना, तो मैडम खुश हो, ऐसे दुखी हो के क्यों बोल रहे हो समझ में नहीं आया? सर मतलब आपने ऑल्टरनेट बताया ना इसका, ये जो अभी हमने पूरा किया उसका ऑल्टरनेट बताया ना अभी आपने शॉर्टकट। हाँ हाँ सर बता दो, ये मेरे को नहीं आया। मैडम, जादू देखने में अच्छा लगता है, सीखने में थोड़ी ना अच्छा लगता है। सर पर टाइम बचेगा ना। अरे अपने पास कौन सी कमी है मैडम? यार मैं एक बात बताऊं क्या? हाँ कौन है, सर। कौन बताया था? वंशिका, आई एम सो सॉरी मैम। यस सर। नहीं, आई एम सीरियसली सो सॉरी, मैंने इतनी मेहनत करवाई, इन सब की कोई नीड नहीं थी। ओके। सॉरी फॉर दिस। नो प्रॉब्लम सर। देखिए 1764 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, मेरे हिसाब से सब निकाल सकते हैं, 27 फैक्टर्स हैं। यस यस सर। सर। किसी भी नंबर को एक्सप्रेसिंग नंबर ऑफ वेज of expressing a number as a product of two factors, ये होता है number of factors divided by 2. Being an odd number, इसमें +1 करके 2 कर देना, because ये perfect square है जहाँ पे 42 into 42 बनता है। That's ओके तो 27 मतलब factor by 2। तो सर इसका बेसिस यही है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग वन अ नंबर एज टू यार एक्चुअली मैंने फैक्टर्स। क्या है, पहले क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा था, मैं देख रहा था ऐसे और कुछ जुगाड़ बैठे, बट ठीक है, लेटर ऑन इट क्लिक्ड और वो मेरे को याद आ गया तो ओके ठीक है सर, अब समझ गई ये वाला चीज, ठीक है। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 48। बताने का है किसी को? हाँ सर। यस सर। एबीसी आर इंटीजर्स, पहली चीज। mod a is less than mod b is less than mod c, which is less than 25. और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एबीसी का सम 10 है। यार ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये बता दो। सर नेगेटिव होंगे नंबर इसमें कुछ। बराबर, लेकिन नेगेटिव लेंगे तो 10 सम बैठ पाएगा क्या ना? यस सर। हाँ सर, बैठ जाएगा, एक पॉजिटिव ले लेंगे बड़ा। हाँ सर बराबर, एक पॉजिटिव ले लेंगे एक बड़ा। नंबर पॉजिटिव बड़ा ले लो और बाकी दो वैल्यूज नेगेटिव ले लो। देखो दो वैल्यूज लेने का लॉजिक ये भी है कि अगर आपने एक नेगेटिव वैल्यू लिया ना तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, आपने 3 लिया तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और आपको रिजल्ट मैक्सिमाइज करना है, मतलब पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव तभी होगा जब आपके पास 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। ये समझ में आया? यस सर। और जो पॉजिटिव है ना, सी को मैक्सिमम कितना वैल्यू दे सकते हो? 24। 24। 24 से बड़ा तो नहीं दे सकता, बिकॉज इंटीजर्स हैं सारे। यस सर। और अगर सी को 24 दे दिया तो ये पॉजिटिव का 24 है, मतलब ए प्लस बी कितना होना चाहिए? माइनस का 14। -14। हाँ या ना? यस सर। सर ठीक है। यस सर। अब ए और बी को क्या क्या दे सकते हैं?
सर सिक्स -8 और -6 -6 सॉरी। -7 भी तो दे सकते हैं। -7 क्यों नहीं दे सकते? सर क्योंकि लिखा हुआ है ना क्योंकि एज लेस देन ये छोटा है सर। सर बट सर वो छोटा है उससे। हम आते हैं समझ ना। में आ गया? देखो होता क्या है कि अगर आपका सम फिक्स है ना तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? व्हेन a इक्वल टू b। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप a को -6 और b को -8 दे दो। क्लियर है? यस सर। मल्टीप्लाई Yes, कर देना, आंसर आ जाएगा। हटा दूं? 1 मिनट सर। यस मैम। यस सर। Shall I remove this? हाँ जी। Shall we go ahead? यस सर। यस सर। Next please. 49. 9। बताने का है किसी को? यस सर, मेरी रेंज वो थर्ड आ रही थी जो यार इनकरेक्ट दिखी नहीं रही मैडम ये तो। माइनस Third- इन्फिनिटी से यू, माइनस इन्फिनिटी से 0। मैडम मेरा भी 6/6 है, दिख रही है, अरे मजाक कर रहा था। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 15/2 टू इन्फिनिटी, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 0 15/2 टू इन्फिनिटी। तो मैडम आपने सर नेगेटिव चेक नहीं किया होगा ना? किया देखो था दो सर। दो तरीके बता दो। पहला तरीका है कि ऑप्शन से वैल्यू उठा के डाल दो सीधे। हम्म। दूसरा तरीका है सॉल्व कर लो। आप क्या चाहते हो वो बता दो, मैं वो कर दूं। सर मैंने सॉल्व किया था और नेगेटिव भी लिया था, आया ही बैठा ही नहीं था, इस वजह से मैंने अभी बिठा देते ये हैं वाला मैम, लिया। अभी हाँ बिठा जी देते सर। हैं। आपको वैसे भी एक चीज समझ में आनी चाहिए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे हम्म। और दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव से चालू करूंगा, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो सोल्यूशन तो पॉजिटिव। वैसे भी दो आएंगे, ये तो क्लियरली विजिबल है। हाँ आएंगे यस सर। तो मैं तो वैसे ही टिक कर देता, अच्छा मैं तो कर सकता हूँ ना। मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बताओ, एक आएगा मेरे हिसाब से 8/3, एक आएगा 7। 7। एक बार 3 बार ओपन कर लेने का मैम। x लेस देन 8/3, x बिटवीन 8/3 7, x ग्रेटर देन 7। हम्म। आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। और सर जैसे मतलब मैंने किया था वो किया था व्हेन x इज पॉजिटिव व्हेन x इज नेगेटिव। नहीं कर सकते मैम, क्योंकि अच्छा जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, फोन हाँ लैपटॉप की। चलो, हाँ क्यों नहीं कर सकते समझिए बात को। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना मॉड x प्लस 4 हम्म इक्वल टू 0, तो आप x को ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर केवल x है। मैं बोलता हूँ मॉड हम्म x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप x प्लस 2 को पॉजिटिव और x प्लस 2 को नेगेटिव ओपन करेंगे। इसका मतलब अच्छा x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -2 ऐसे ओपन करने का है। और ये x अच्छा इक्वल टू अच्छा। -2 आ कहाँ रहा है? जब x प्लस 2 को 0 कर रहा हूं तो x इक्वल टू -2। हम्म समझ में आ गया? हम्म Shall I remove this? सर आपने यस कैसे केस बताए? एक तो 7 से छोटा, स्मॉल। जो 8/3 से बड़ा हो। हाँ एक 8/3 से छोटा और एक 7 से बड़ा। अच्छा, ये दो केस बनेंगे ना? तीन लेस देन 8/3, बिटवीन 8/3 एंड 7, ग्रेटर देन 7। ओके सर। Shall I remove? यस सर। यस। नेक्स्ट प्लीज। The 54. बताने का है किसी को? नो सर। No, sir. देखो किसी की इच्छा है तो पूछ लेने का। नो सर। किसी को भी नहीं पूछना है? No, sir. अरे नो सर। यार दिल तोड़ दिया। इतना इजी सर क्वेश्चन था। क्योंकि ये तो आपका डायरेक्ट कट हो सर जाएगा ना? सॉरी ये तो कट हो जाएगी ना वैल्यूज? मैडम, 1012 और 1078 1 होता है, 1024 हाँ और 1066 1 हाँ, होता है, फिर 1036 और 1060 54 1 होता है। √3 बचेगा रूट तो तो ये √3 बचेगा, तो 1/5 √6 इंटू √3
ये 1 कट गया by 5 रूट 2 में, root 1 2. by 5 रूट 2 आंसर खत्म। हाँ भाई। समझ में आया? जिसको आ गया पूछना मत, अब इसमें कुछ नहीं आता छोड़ दो। बता दूं? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट प्लीज। 56. बताने का है किसी को? ये 56 थोड़ी है, ये Yes, बताने का है sir. किसी को? बताना है? Yes, sir. ओके लेट्स सी। यार ये क्या चक्कर है मैडम, ये जैसे ये ऐसे क्या बोलते हैं इसको, गैम्बलिंग वाले क्वेश्चन आते तो आप यस भी बोलने लग जाते। सर ये नहीं आया मेरे को, इसलिए मैंने तो ये यस सीख के बोला। करना क्या है आपको? सर सीखना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा मेरे को लगा सीख। एट द आता है कार्निवल वो ऑफ, तो। वो आता है? हाँ तो फिर क्वेश्चन में क्या रखा है मैडम, कैट में क्या रखा है? बड़ा करो कुछ, सर, घाटा होता है वहां पे इसीलिए। समझाओ बात कौन को। बोल रहा है घाटा और इसको? नहीं तो दे यार, छोड़ो। At the Carnival of Fortune, there is a game where players roll a fair die. The game show host promises to reward the player thrice the number rolled if it's an odd number, 5 times the number rolled if it's an even number. A player named Claude decides to participate and is willing to pay each time they roll the die if he aims to achieve an average profit of $9.5 per roll over a long term. यार एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन दे रखी है, इसका क्या मतलब? So n tends to infinity. हाँ सर ओवरऑल जितना भी खेला इसका उसने। मतलब है कि वो डाइस फेंकता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। हाँ सर। और अगर उसने इनफाइनाइट टाइम्स डाइस थ्रो किया तो वन कितनी बार आया वो? इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स। टू कितनी बार आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स। हर नंबर इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। यस यस सर। सर। अगर ऐसा है तो मैं बोल दूं सबका रिपीटेशन बराबर है। हाँ और हाँ अगर ऐसा है तो मैं ये बोल दूं कि 6 बार में एक वन आया होगा, एक टू आया होगा, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। यस सर। तो आपने 6 थ्रो फेंके आपने, एक थ्रो का आप एक्स रुपीज देते थे, 6 थ्रो का 6x दोगे। 6x। इतना तो आपने दे दिया, यानी ये आपका कॉस्ट है। आपको एवरेज ऑफ $9.5 पर रोल का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 6 थ्रो का? 57। 57। इक्वल आपको वापस कितना मिला? ये आपका कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट, अब आपको सेलिंग प्राइस, वापस कितना मिला? इफ इट्स एन ऑड नंबर, the game host promises to reward the player thrice the number rolled if it's an odd number. अगर 1 फेंका तो कितना वापस मिलेगा? 3। 2 के लिए 5 10 और इवन के लिए 5 टाइम्स दे रहा है। 3 के लिए 6। 9 3 टाइम्स दे रहा है मैम। हाँ हाँ 9। 4 के लिए 20 20। 5 के लिए 15 15 और 6 के लिए 30 30। जल्दी से ऐड करो। 20 और 30 50 और 10 60, 60 और 15 75, 75 और 12 87। एक्स का वैल्यू बताएगा कोई? 5 समझ में आ गया? 6x किया था सॉरी सर, ये 6x क्यों किया था आपने स्टार्टिंग? पर थ्रो का $X दे रहे हो, 6 थ्रो का कितना दोगे? 6x होगा तो सर आपने 6 ही थ्रो अज्यूम क्यों करे, मतलब सॉरी सर इट्स अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब 1 भी इनफाइनाइट, 2 भी इनफाइनाइट, सब इनफाइनाइट बार है। और अगर सब इनफाइनाइट बार है तो सबका रिपीटेशन बराबर है। हाँ मतलब हर 6 थ्रो में एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 ले सकते हैं अपन। अच्छा ओके चले आगे? फाइन, shall I remove यस this? सर यस सर। Yes, Yes, sir. Going ahead, next please. 60. बताने का है किसी को? हाँ सर, इसमें मेरा आंसर 1 आ रहा है।
क्या इसका किसी से तो डिस्कशन हुआ था? सर भव्य से करा था ओके, आपने भव्य गलत। मीटिंग में है क्या? है क्या? देखना यार एक बार, किसी को दिख रहा है क्या पार्टिसिपेंट? है सर, है भव्य? मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा भाई, लेकिन है तो सही। सो गया होगा मैडम, छोड़ो। आते क्यों नहीं? बोलेगा अरे सर माइक काम नहीं करता था मेरा। यार और भी था क्या कोई भव्य के साथ? सर मैं थी तब। हाँ, मैंने क्या बोला था मैडम? सर आपने इसमें इक्वेशन बनाई थी, फिर आपके पास दो आए थे 18 और 19, और 18 वाला अपन ने एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि इसने सब पे बिड नहीं करी है और हाँ, उससे तो बिड आंसर ना 1 आ रहा था बिड। मेरे हिसाब से। हाँ 1 आ रहा था सर। यार देखो, देयर इज अ बिट ऑफ, मतलब जिसका भी डाउट है, किसका डाउट है पहली बात तो ये? सर मेरा दीक्षा, मेरा भी है। आपका भी। आप दोनों का आंसर क्या आया? ऐसा है कि आंसर ही नहीं आया? सर मेरा आंसर तुमने आया, मैंने बहुत इक्वेशन मतलब छोड़ बनाई दीजिए। तो 1 मैम आया। आपका, वंशिका आपका? नहीं ये सर, सर आप कुछ बोल रहे थे? अरे मालिक, आप हैं यहाँ पे? हाँ हाँ सर, अभी वॉशरूम गया था बस। यार एक बात बताओ, मतलब मेरा यस। परसेप्शन ये है कि इन जनरल बंदा कोई वॉशरूम जाता है तो मोबाइल लेके जाता हाँ हाँ। है। बस तो बस बहुत है आज के लिए, इतना ही। चलो, वंशिका आप कुछ बोल रहे थे, आपका आंसर आया क्या? नहीं सर। नहीं। चलो मैं, सोफिया is an art collector who recently participated in an exclusive auction with 25 unique paintings up for bid. ठीक है? The auction followed a peculiar set of rules. For every painting she successfully bid on, she gained 4 points. If she lost a bid, 2 points loss है. अगर उसने बिड नहीं किया तो -1. समझ में आया? आपने बिड किया, आप जीत गए तो +4, हार गए तो -2, और आपने बिड ही नहीं किया तो -1. हाँ है ना? यस सर। ठीक है। आगे दे रखा है एट द एंड ऑफ द ऑप्शन उसको 64 पॉइंट्स प्लस रही वो, शी एक्युमुलेटेड 64 पॉइंट्स। आपसे पूछे मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में उसने बिड नहीं किया हो, बिड किया होगा बट जीती नहीं। 25 पेंटिंग्स थी, यस सर। एक्स पे उसने बिड किया और जीत गई, यस। वाई पे उसने बिड किया और हार गई, 25 माइनस एक्स माइनस वाई पे उसने बिड किया ही नहीं, ये वॉन, हाँ ये लॉस्ट, और ये डिडंट बिड। क्लियर है? सर यस पर सर। डिन बिड को क्यों कंसिडर करेंगे इसमें? सॉरी मैम, डिडंट बिड का -1 हो रहा है ना आपको। अच्छा ओके, हाँ इसमें हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स वॉन तो 4x पॉइंट मिल गए होंगे, 4x। -2y होंगे लॉस के लिए, हाँ सर। माइनस ऑफ 25 माइनस एक्स माइनस वाई होगा फॉर नॉट बिडिंग, और 64 है रिजल्ट। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सॉल्व दिस इज -y and +y, तो इट इज 4x minus y -25, अच्छा सॉरी, माइनस प्लस एक्स, ये 3x हो जाएगा फिर तो, मतलब मेरे हिसाब से शायद 3x ही होगा ना, नहीं 5x हो जाएगा। हाँ 5x 5x। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा वो सॉरी सॉरी, प्लस ही, सॉरी। 5x minus y इक्वल टू 89, ये -25 हो जाएगा, 64 में ऐड हो जाएगा। यहाँ हाँ तो कोई ऐड हो दिक्कत? जाएगा। ठीक है सर। देखो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, डेसिमल तो नहीं हो सकते, हाँ नहीं। सर। और आपका जो x है ना वो 18 होगा, तब ये 90 बनाएगा, तब जाके y कुछ आ सकता है। अगर आपने इसको 17 भी ले लिया तो 85, मतलब y नेगेटिव है, हाँ सर। तो 18 ले लूं, और अगर इसको 18 लिया तो y कितना आ गया? 1 आएगा। 1। 1। इससे बड़ा, अगर x को 18 की जगह क्या लूं नेक्स्ट, 19, तो y कितना आएगा? 6। x को 20 तो y कितना आएगा? 11। यार देखो, x y और तीसरी क्वांटिटी मिला के कितना है? 25। केवल ये 25। दोनों ही 25। 31 तो हो नहीं सकते, हाँ। ऐसा दे रखा है। knowing that she did not place bids on all the 25 paintings, और इसमें अगर देखा जाए तो 25 तो केवल वॉन और लॉस ही हो रहे हैं, हाँ सर, नॉट बिड और तो इसमें इसका क्यों मतलब है include था? नॉट बिड 0 हो गया। नॉट बिड 0 हो गया, और हाँ। ऐसा दे रखा है कि उसने सब पे बिड नहीं किया, मतलब एक ना एक नॉट बिड तो रहेगा।
हाँ सर दोनों ये चीजें गलत है, मतलब क्या कंसिडर करेंगे यहाँ? तो ये आंसर गलत है ना, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. हाँ She could have bid but not won. उसने बिडिंग किया बट हार गई. One should be the correct. क्लियर है? सर अज्यूमिंग इसका आंसर 1 है और इसको उठाना चाहिए क्या क्वेश्चन पे? मैम देखिए, क्वेश्चन का दो दिक्कत है. क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा है, लेकिन सोल्यूशन इजी है बिकॉज ये बेसिक लीनियर इक्वेशन चल रहा है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है. लेकिन लेंथ ज्यादा है तो अपन अपने साथ जनरल परसेप्शन क्या रहता है कि यार लेंथ ज्यादा है तो कुछ टेक्निकल होगा. पता नहीं यार, मेरा एक थोड़ा सा पॉइंट अलग रहता है. मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है और एक छोटा क्वेश्चन है, तो छोटा क्वेश्चन मतलब लेस इंफॉर्मेशन, लेंथी क्वेश्चन मतलब मोर इंफॉर्मेशन. और अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे. तो मेरे लिए लेस इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपके पास इंफॉर्मेशन कम. तो मेरे हिसाब से ये परसेप्शन की लेंथी क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दूं. दिस कैन बी द ओनली रीजन कि मैं इसको छोड़ूंगा. अदरवाइज ये एक बेसिक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन. सर अभी इसमें है ना मैंने 3 वेरिएबल डाल दिए थे तो इससे हाँ 2 आ रहा था। मैडम गलत डाल दी. पहली बात तो 3 वेरिएबल डालने ही नहीं है कभी भी. 4x मेरा माइनस 2y माइनस z नहीं कर सकते? मैं समझ गया, कर सकते हैं ना, करने की हम्म, मनाही नहीं है. लेकिन बट फिर एक और अपन इक्वेशन जो अटक बनानी थी जाएंगे। वो आपने नहीं बनाई ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हाँ ये 25. नहीं नहीं, हाँ तो फिर वो ये बनानी नहीं। पड़ती है. 3 वेरिएबल एक इक्वेशन का तो मैंने कुछ जुगाड़ ही नहीं बताया. 3 वेरिएबल के साथ 2 इक्वेशन का फिर भी कोई जुगाड़ है. सर ये x प्लस वाई प्लस जेड 25 बनाई थी। बनाई थी. हाँ शायद, मतलब एक्चुअली मैं सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा सोल्यूशन। ढूंढ लीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा. हटा दो इसको. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Shall we go ahead with the next one? यस. Yes, Please. 63. बताना है किसी को? No, नो sir. सर. नेक्स्ट. 64. बताना है किसी को? No, sir. नो सर. नेक्स्ट. 66. बताना है किसी को? नो सर। No, sir. का? Yes, sir. पक्का. यस सर. ठीक है, नहीं बताना तो मत पूछो. डन विद इट. क्लियर है? खत्म करें? सर ये इसमें वाला बता डायरेक्ट दो सर, 5 की लास्ट वाला पावर बता 8 दो। कॉमन ले लेंगे ना. हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. और फिर उसके बाद तो क्लियर था कि 75 डिवाइड नहीं करेगा. कर सकते हैं. और हिमांशी सर आपको x पूछना प्लस है? वाई एक्स माइनस वाई। सर यस सर. चलो विल डिस्कस दैट. देखो इन केस अगर इसको डिटेल्ड सोल्यूशन में जाओगे तो डिटेल्ड सोल्यूशन होगा ए सर ये क्यूब ऐसे होगा x ए प्लस स्क्वायर वाई एक्स माइनस बी माइनस वाई। स्क्वायर हाँ 15 हाँ पावर 4 55 पावर 4 15 पावर 4 माइनस 5 पावर 4. फिर ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. फिर ये हो जाएगा फाइनली आएगा 15 पावर 4 प्लस 5 पावर 4 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 15 प्लस 5 15 माइनस 5. किसी को इतना सब टेक्निकल नहीं करने का है ना, यू कैन जस्ट मेक इट क्लियर. मतलब आई कुड हैव सॉल्व्ड एंड आई कुड हैव सजेस्टेड यू अ वे जहां पे इसमें पेन पेपर भी नहीं उठाना पड़ेगा. मुझे एक छोटी सी बात बता दो. 5 अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? 25। 25. 25. मतलब यू कैन से ये इवन पावर है, मतलब इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 25 आएगी 100%. हाँ. माइनस इसकी भी 25 आएगी 100%. हाँ. मतलब इसके रिजल्ट की लास्ट 2 डिजिट 00 होगी 100%. यस सर. और अगर ये 00 है तो 4 से डिविजिबल होगा क्या? हाँ हाँ. 5 से, यस. हाँ 50 से. हाँ आंसर क्लियर है? यस सर. यस सर. बढ़िया था. यस सर. यस सर. थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, चीजें इजी हो जाए. Shall we go ahead? यस सर. Yes, sir.
Fine. So finally with this, I guess we are done with the discussion of AIMT1 quant section. Yes, sir.